the left side we write sender's address, leaving a line we write date. Date should be written in this format. Broker's address, receiver's address should be like that. मैंने इसमें बता दिया कि क्या एरर की गुंजाइश हो सकती है. सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो लेटर टू एडिटर लिखिए उसको. Hello and assalamu alaikum to everyone. This is Abu Talha with the collaboration of Z-Marks classes. I would like to introduce myself on this YouTube channel. I would like to pay thanks to Muhammad Kashif for providing me an opportunity to explain some topics of CBSE related to class 10th. Dear students, during this lockdown, it is very difficult for you to enhance your productivity to gain some knowledge. For the efficiency and for your development of knowledge, I would like to make some videos related to the important points and topics of class 10th CBSE English language and literature. Dear children, I hope you went through the syllabus that is provided by CBSE. The syllabus and the question paper structure, everything, I hope you have understood. Now, today I would like to describe the main topic, letter writing. The main topic of class 10th, letter writing. This topic is particularly for class 10th, but the student who are studying currently in class 10th, I hope they have been studying this topic for the long time. Letter writing is very important in the question paper of class 10th. Letter writing is very important topic. It carries 10 marks, and today I would like to try to teach you how to score good marks and full marks in letter writing. So I will be discussing about the format of letter writing. Later I will give you some example of the whole description of letter. Dear student, letter writing, there are actually two types of letter, formal letter and informal letter. And informal letter. Formal letter is also known as business letter or official letter. Or official letter. In class 10th, we only have to study this formal letter. And in informal letter, particularly in class 10th, there are 4 types of letter that are being introduced. Slowly we will go through one by one each. We will study one by one all the types of letter that are going to be discussed in class 10th. So first of all, I would like to brief you about formal and informal letter. First, formal letter is a letter that we usually write to any official. That formal letter is a letter that we write to the person we don't know, who is not familiar to us. And informal letter, that is also known as personal letter. Means, as per the word, it is clear that this letter, personal letter, is a letter that is written to the person who are very relatives. Like we usually write personal letter to our friends, to our relatives, and to our family members. Now, dear students, I would further like to categorize the formal letter that are going to be asked in the question paper of class 10th. Formal letter. In class 10th, we have to study 4 types of letter. Particularly 4 types of letter. The first is letter to editor. Second, inquiry letter.
letter to place order, and last one is complaint letter. Dear children, these in letter writing, any of these four topics, four types of letter can be discussed, can be asked in the question paper. Now, one by one, we will study all types of letter. Make sure that the letter that we are going to study should be very clear. If you have any doubt, you can ask me. You can comment your questions to this channel. I would request you to note down all these topics. I am going to erase. Now, we are going to discuss about the first type of letter, that is letter to editor. Okay, first of all, we have to keep this thing in our mind that every letter in the answer book we have to write from the fresh page. हर लेटर को हम एक फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करेंगे, नॉट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द पेज, नॉट फ्रॉम द लास्ट ऑफ द पेज. हर लेटर को फ्रेश पेज से लिखना. दीज आर सर्टेन पॉइंट्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड टू गेट 10 out of 10 in letter writing. So I would like to discuss you about the format of letter to editor. At the top of the page, suppose this is your copy, at the top of the page you have to write your address. You have to write, there will be sender's address. Sender's address के बारे में एक बात बता दूं. Usually the student commit mistake, they write their own address. We do not have to write our own address, we have to write the address that is given in the question paper. You are not supposed to write your own address. Suppose you belong to Mubarakpur or Lalganj, you do not have to write your own address. There is the question, and in this question there must be an address. You have to write the sender's address. While writing sender's address, you should put comma and full stop in a proper place. Like I am writing a letter, I am writing an address over here so that you can understand it more easily. Mubarakpur, Azamgarh. Suppose if I have to mention, if I have to make it little more clear, we have to write Muhalla Pura Rani. Here put a comma over here. Mubarak, then Mubarakpur Azamgarh, put another comma over here. UP. Full stop. Sender's address should be like that. And now we have to write date. After leaving a line, here there after writing a sender's address, you have to leave a line. Then you have to write the date. Okay. While writing date, there are certain points that should be kept in the mind. What are they? You are not supposed to write the date in this way, like 01/01/20. If 1/01/01, अगर आपको लिखना है डेट तो उसका एक सर्टेन पॉइंट है. वो क्या है कि यू राइट 1st January 2020. ऐसे लिखिए. ऐसे 01/01, this is the wrong way of writing date. This is the correct way. Put a comma over here. Or in other way we can write January 1st, 2020. और इसको शॉर्ट में भी नहीं लिख सकते. You cannot use an abbreviated form of the month's name like 1st Jan 2020. So these are the things that that put a negative impression on the examiner. While these things should be kept in the mind. The date should be like that: 1st January 2020 और January 1st, 2020. ये चीज़ कि 1st Jan ये 2020 ये रॉन्ग है.
और ये वाला जो फिगर में लिखे जाते हैं ये तो टोटली रॉन्ग है। तो वाइल राइटिंग डेट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मार्क्स कहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं कोई नहीं बता सकता, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। नाउ आफ्टर राइटिंग डेट यू हैव टू लीव अनदर लाइन अगेन। नाउ यू विल राइट रिसीवर्स एड्रेस। Receiver's address means the address on which you are going to write, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हो। तो certainly we are studying letter to the editor, तो जाहिर सी बात है हम जो भी लिखेंगे एडिटर को ही लिखेंगे। तो रिसीवर्स एड्रेस लिखने के टाइम पे भी कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जिसको हमको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। while writing receiver's address these are the points that should be kept in your mind. What? The editor. Since we are writing the letter to the editor, the student usually commit mistake. What? They write the editor. Editor का E, the E of editor should be capital. ये E editor का कैपिटल होना चाहिए, कॉमा द हिंदुस्तान टाइम्स। किसी भी न्यूज़पेपर से पहले हम लोग न्यूज़पेपर नेम से पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं, तो वी हैव टू पुट द बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर एंड ऑल द वर्ड शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, द हिंदुस्तान टाइम। एंड ऑल्सो द एड्रेस, जो भी एड्रेस हमको जिसको लिखना है, सपोज वाराणसी हमको लिखना है, वाराणसी फुल स्टॉप। तो ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस, ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। ये डेट कैसे लिखी जाएगी वो हो गया, और ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, ये डेट हो गई, ये डेट हो गई, ये हो गया। Now there is a confusion. Usually the student ask question related to the salutation. कुछ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि सर सैल्यूटेशन जो है सब्जेक्ट के बाद लगाएं, सब्जेक्ट के पहले लगाएं। तो ये इस कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर देता हूँ। सैल्यूटेशन मीन्स यूजिंग सर, जैसे जो हम सर लिखते हैं, सैल्यूटेशन, इसके लिए आई वेंट थ्रू सो मेनी बुक्स एंड आई फाउंड दैट सैल्यूटेशन कैन बी केप्ट एनीवेयर, बिफोर द सब्जेक्ट एंड आफ्टर द सब्जेक्ट, नॉट एन इश्यू। आप सैल्यूटेशन को सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। यूजुअली जो स्टूडेंट जो मेरे स्कूल से या मुझसे पढ़े हुए हैं उनको अच्छे से पता होगा, आई यूजुअली पुट सैल्यूटेशन आफ्टर द सब्जेक्ट। तो ये कंफ्यूजन है, एनीवेज मैंने पहले बता दिया, बट दिस इज माय पर्सनल method of writing letter that I usually put salutation after the subject. तो here I will write first subject. तो salutation को हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट should be precise and concise. It should not be very long. Suppose you have to write on a letter on the issue that the student are using unfair means exam in the exams, and you have to write a letter to the editor of the newspaper. तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो सब्जेक्ट लिखेंगे उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा 2-3 लाइन में नहीं लिखेंगे. इट शुड बी वेरी शॉर्ट. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग द सब्जेक्ट तो राइट ओनली हियर लेटर टू एडिटर. मतलब कि अगर सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितना लिखना है, तो आप लेटर टू एडिटर लिख दीजिए, या फिर आपको लेटर रिगार्डिंग यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन एग्जाम्स. बस इससे ये भी मैक्सिमम हो गया, ये भी ज्यादा है. इट इज ऑल्सो ह्यूज सेंटेंस वी कैन से. So while writing subject it should be very short, very concise and very precise. Okay, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लेटर, वो जो सब्जेक्ट इतना बड़ा ना हो जाए कि बॉडी ऑफ द लेटर लगने लगे. तो लेटर टू एडिटर
if you do not know how to write the subject, you just write letter to editor, or if you know how to write, make it very short subject. Now as I just said that I usually write salutation after the subject, तो मैं यहाँ पे salutation मतलब सर और डियर सर या मैम जिसको भी आप लोग लिख रहे हैं, इसके बाद कॉमा लगाते हैं, पुट अ कॉमा आफ्टर दिस वर्ड. ओके, नाउ फ्रॉम आफ्टर लिविंग अ लाइन you have to write the body of the letter. Make it clear that the body of the letter contains the the most part of your letter writing, so it should be very clear, very fluent and very consistent. इसी पे ज़्यादा आपको मिलेगा. फॉर्मेट आपका 1 मार्क्स का होता है एंड मेन जो बॉडी ऑफ द लेटर है, फ्लुएंसी एक्यूरेसी इसी में देखी जाती है. तो बॉडी ऑफ द लेटर, क्योंकि सीबीएसई ने लेटर राइटिंग को थोड़ा सा जो है मॉडिफाई किया है, सो इन दिस ईयर letter writing will carry 10 marks, and before that previous year and previous year the letter writing consisted only 8 marks. तो जो वर्ड लिमिट थी, जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट थी, वो अभी चेंज हो गई है. लास्ट ईयर तक आप लोगों को 120 वर्ड्स तक लिखना था. ऐसे होता था कि 100 to 120 वर्ड्स में लिखिए, बट दिस ईयर यू हैव टू राइट लेटर विद इन 150 to 200 वर्ड्स, और वो सारे वर्ड्स अपने थॉट को पूरा जॉट डाउन करना इसी बॉडी ऑफ द लेटर में. तो इसको बहुत अच्छा लिखना है, इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द सर्टेन पॉइंट्स दैट शुड बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द लेटर एंड हाउ विल यू enhance your words and how will increase the word limit. And one thing कि अगर आप बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हैं, वो यूजुअली बहुत लंबा लिखने के चक्कर में वो जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट वर्ड लिमिट है उसको भी एक्सीड कर देते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड आई वुड इंस्ट्रक्ट यू नेवर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट. जितना वर्ड लिमिट हो उससे आगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है. एग्जामिनर को अगर कोई अच्छा एग्जामिनर है उसको एक पॉइंट पे वो जो क्या करता है कि मतलब मार्क्स डिडक्ट कर सकता है. तो ट्राई टू कंक्लूड योर मैटर्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट. बॉडी ऑफ द लेटर में मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें लिखना है जिससे आपको वर्ड्स सारे आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्सीड भी नहीं करेगा. तो उसमें पहला है, सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपको लिखने होते हैं, जैसे कि रीजन ऑफ राइटिंग लेटर, मतलब कि आप लेटर क्यों लिखते हो. जैसे कि हम यूजुअली लेटर को स्टार्ट करते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर. आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड अ मेजर इश्यू. ओके, तो ये जो है रीजन, हमारा रीजन क्या है कि एक मेजर इश्यू है जिसकी वजह से हम लिख रहे हैं. ना अब रीजन ऑफ द इश्यू, जैसे एग्जांपल के तौर पे अनफेयर मीन्स हैं, वो क्यों यूज किए जाते हैं, उसके रीजन कुछ सर्टेन डाल दीजिए. व्हाई द स्टूडेंट्स आर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम्स? बिकॉज दे हैव प्रेशर to clear the exam at any cost. They have fear of failure, and there are so many problems, there are so many reasons जिसकी वजह से कि वो unfair means एग्जाम में यूज करते हैं, चीटिंग करते हैं और वो बहुत कुछ अनफेयर मीन यूज करते हैं. तो हमको क्या करना है कि वो रीजन लिखना है. नाउ रीजन ऑफ द शू. सेकेंड, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट इशू. उसकी वजह से क्या होगा. सपोज इफ ए स्टूडेंट इज यूजिंग नेगेटिव एंड अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज. तो उस पर आपको क्या करना है कि भाई उससे क्या होगा कि एक एजुकेशन जो होगी वो डेप्थ एजुकेशन में डेप्थ नहीं होगी. ही विल ओनली बी एबल टू पास इन द एग्जाम्स, बट ही विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन द लाइफ. सो देयर आर सो मेनी सीक्वेंसेस. मैं एक
एक लेटर अभी उसको डिस्प्ले कर दूंगा किसी पॉइंट पे, आप लोग उसको गो थ्रू कीजिएगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो रीजन ऑफ द इशू शुड बी वेरी क्लियर एंड इट शुड बी रिलेवेंट टू द टॉपिक, नॉट टू, ऐसा नहीं कि उसको पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, उसको हर हाल में ये सारा चीजें जो भी, मतलब द रीजन ऑफ द इशू शुड बी वेरी रेलेवेंट। हाँ, एंड इफेक्ट्स, उसके इफेक्ट्स बता दिया या कॉन्सिक्वेंसेस, ये अभी मैंने बताया कि इफेक्ट्स में क्या लिखने हैं, और करेक्टिव मेजर्स जो आप सजेस्ट करेंगे कि किसी भी जो मतलब अनफेयर मीन, एक मैंने टॉपिक दिया पर्टिकुलर कि अनफेयर मीन यूज होते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए क्या करेक्टिव मेजर आप करेंगे। आप कहेंगे कि भैया एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए, देयर शुड बी द इंस्टॉलेशन ऑफ कैमराज in the classes and the examination should be conducted online, the paper should be different and बहुत सारे आप सजेस्ट करेंगे, तो करेक्टिव मेजर्स में आपके सजेशंस आते हैं। तो मैंने बताया, एक बार जल्दी जल्दी इसको रिकैप करते हैं, तो मैं इरेज करने जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। एट द टॉप ऑफ द लेटर, एट द टॉप ऑफ द पेज, on the left side we write sender's address. I have discussed how to write the sender's address. Now later, after leaving a line, we write date. Date should be written in this format. Okay, there are certain formats that's are wrong. Okay, now moving on to the receiver's address. Receiver's address should be like that. मैंने इसमें बता दिया कि क्या एरर की गुंजाइश हो सकती है। And subject letter to editor, जो भी अगर मैंने कहा सब्जेक्ट शुड बी वेरी शॉर्ट, ओके, उसमें लेटर टू एडिटर, अगर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो लेटर टू एडिटर लिखिए, उसको सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा 2-3 लाइन का बढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सैल्यूटेशन के बारे में एक कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास कंफ्यूजन है। मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे बुक्स में देखा, किसी में सैल्यूटेशन सब्जेक्ट के ऊपर होता है, किसी में सैल्यूटेशन सब्जेक्ट के बाद होता है। आई यूजुअली राइट सैल्यूटेशन आफ्टर द सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आर फ्री टू राइट वेयर एवर दे वांट। सैल्यूटेशन मतलब सर बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या चीजें हैं कि रीजन आपके लिखने का कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, उसके बाद रीजन ऑफ द इश्यू, आप किसी इश्यू को डिस्कस करोगे तो उसका रीजन क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, और उसके करेक्टिव मेजर्स कैसे उसको सुधारा जा सकता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इफ द स्टूडेंट इज वेरी गुड, he is very expert in writing letter, so he or she should write in the segments, कि पैराग्राफ चेंज करके सबको लिखिए। नहीं, अगर मान लीजिए कि एक और तरीका है कि आप एक ही फ्लो में लिखिए। कभी कभी क्या होता है कि हम रीजन लिख रहे हैं और उसी के साथ क्या है कि उस रीजन की वजह से उसके सीक्वेंस भी लिखना चाह रहे हैं, फिर दूसरा रीजन याद हो गया, तो इसमें यह है कि हमारा फ्लो गड़बड़ हो जाता है। तो पैराग्राफ अगर आप बहुत अच्छे हो, अच्छी सी प्रैक्टिस कर लिए हो, तो उसको कम से कम 3 पैराग्राफ में वो एक अच्छा इंप्रेशन बनाते हैं। 3 पैराग्राफ में बॉडी ऑफ द लेटर को लिखिए, नहीं तो सीधे सीधे एक ही पैराग्राफ में लिख डालिए। ओके, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का। इससे पहले कि मैं इरेज करूँ, आप लोग, मैं चाहूँगा कि इन सारे पॉइंट को एक बार देख लीजिए। फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन, फॉर मोर एलेबोरेशन, I would just give you an example of letter that is written by me. Okay, you can take help by that also. हाँ, body of the letter के बाद लास्ट में your hope लिखना है, expectation that I would like to request you to publish my article in your reputed newspaper. बस ये लिखना है, thanking you। उसके बाद yours लिखना है। ये बहुत ही important point है, इसमें लड़के मिस्टेक कर देते हैं। yours should be like that। कुछ लोग yours ऐसे लिखते हैं, your apostrophe ऐसे, wrong। कुछ लोग सिर्फ your लिखते हैं, this is also wrong। yours and also yours sincerely, and do not write your name on the letter। Okay, you have to write the name that is given in the question paper, never write your own name। ये मिस्टेक कर देते हैं, जल्दबाजी में लड़के मिस्टेक कर देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। कभी भी अपना नाम नहीं लिखना है। अगर तुम्हारा नाम ही है उसमें तो ठीक है, लिख दो, बट
उसमें जो क्वेश्चन पेपर में नाम दिया जाता है वही नाम लिखे, अमन, रेखा, सुलेखा, जो भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग लेटर राइटिंग अपना, ये फॉर्मेट है। मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको रिटन, और ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो फर्स्ट वीडियो था मेरा। आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा है, मुझे आगे वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, जो भी है। और थैंक यू वेरी मच।